participants in the second technical session. And for that, we are having one of the renowned speaker, Architect Alka Arya Madam. And Madam is currently working as a director in Delhi Development Authority, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi. So before starting, I would like to give a short introduction about Alka ma'am, our participant. Ma'am did her schooling from Kendriya Vidyalaya, NTPC Korba, Chhattisgarh. Ma'am has pursued her bachelor in architecture from IPS Academy Indore from 1999 to 2004 with the silver medal. Ma'am has continued from 2004 to 2006 for SPA New Delhi, worked for 4 years in real estate MNC, Cushman and Wakefield, Gurgaon, and represented India in India-China Technical Exchange Program at Shanghai in 2007. Ma'am has joined the Delhi Development Authority, DDA, Ministry of Housing and Urban Affairs in New Delhi in 2009 as Assistant Director Planning and currently posted as a Director in Planning. In tenure at the Delhi Development Authority, worked in important projects of Dwarka, Rohini Land Pooling Policy, Transit-Oriented Policy, Master Plan for Delhi 2041 preparation, etc. Ma'am comes from an Arya Samaj background family and strongly believes in spiritualizing our sciences. Firm believer that human beings are wonderful creation of Almighty, and with the Vedic science, we can expand our both materialistic and spiritual horizon, coexisting with fellow creations in the universe and live this life blissfully. So with beautiful thought which ma'am has having with her, I would like to invite, welcome Alka ma'am on the behalf of entire SAGE Group and SIRT Pharmacy in this AICTE sponsored faculty development program on emotional quotient, intelligent quotient and social quotient. So thank you ma'am for accepting our invitation. Now the audience is yours. Thank you, Priyanka. Namaskar, everyone. I hope I'm audible, Priyanka. Yes, ma'am. Yes. Yeah. So I extend a warm welcome to all the elating souls gathered here to ponder upon some thoughts of the basis of our existence, human beings, our evolution, and I think that's the basis of intelligence questions that we are talking about today. ये प्रश्न हम सभी के मन में उठते हैं, क्यों आए, किस लिए आए, ये चांद, सितारे, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ये हमारे लिए हैं, किसी और के लिए हैं, अब रहेंगे, कल खत्म हो जाएंगे. सो इस पे पूरा विश्व लगा हुआ है और आज से नहीं अरबों वर्षों से इस पे लगा हुआ है. सो इंटेलिजेंस का ये जो बेसिस था, ये बहुत नया नहीं था. मनुष्य जब से इस सृष्टि पर है तब से वह मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और इसी संस्कृत के शब्द से उसका नाम मनुष्य पड़ा है. मनु, मनन करने वाला, मननशील जो जीव है वह मनुष्य है. जहां इसकी मननशीलता समाप्त हो जाती है, फिर ये पशुओं की तरह एक्ट करने लगता है. थोड़ी मननशीलता और कम होती है तो ये वनस्पतियों के रूप में होता है. जैसा कि हम सभी को पता है कि आत्मा हम तीनों जीवों का जिनका मैंने नाम लिया उनमें प्रस्तुत होती है. सिर्फ ये मननशीलता, ये सोचने की शक्ति हमें पशुओं से, वनस्पतियों से भिन्न बनाती है. इसी मननशीलता के दौर में जब जब मनुष्य सृष्टि पर आया, उसने अपने ब्रह्मांड को चारों तरफ देखा और फील किया. आजकल हमें अनफॉर्चुनेटली आई वुड से मैकेले शिक्षा पद्धति ने और मैक्स मूलर शिक्षा पद्धति ने इतना डीरेल कर दिया कि जो भी उनकी लर्निंग रही उससे हमें ये लगता है कि शायद सबसे पहला सेब गिरता हुआ न्यूटन नहीं देखा था. हमें इतनी आदत हो गई है हर चीज में वेस्टर्न कोट करने की. आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं और थोड़ा सा ज्ञान का भंडार, ये आपके घर से शुरू होता है. हम धीरे धीरे, जैसे गार्गी की बातें माता पिता बताया करते थे, दादी दादाजी बताया करते थे, ऋषियों की, मुनियों की. आपने आई एम रियली श्योर कि आइंस्टाइन सुना होगा, न्यूटन सुना होगा, गैलीलियो सुना होगा, मगर बहुत सारे ऐसे हमारे मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि ये भारत में
इन्होंने जन्म लिया, और ये ऐसे वैज्ञानिक हुए जिनकी स्टडी, जिनकी जो रिसर्च है अगर आप पढ़ लें, तो ये जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच करंटली वी आर सो डिप्राइव्ड ऑफ, वी कैन गेट अवे विद दैट। इसमें मैं जैसे नाम देना चाहूं तो जेमिनी, कणाद, वैवस्व मुनि, आपने यज्ञवल्क जी का नाम सुना होगा, महर्षि मनु जी का नाम सुना होगा, जिनके द्वारा मनुस्मृति बनाई गई थी, और उसके लिए भी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमें ये पढ़ाया नहीं जाता, सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि इसमें भाई ऐसी क्या बातें हैं, इसमें आपको पता है पूरी क्या बातें हैं? इट्स जस्ट स्पिरिचुअलाइजिंग योर साइंसेस, epitome of science researchers, all 16 streams, you name the stream, it is very well laid there. Our rishis, munis, वैज्ञानिक, जितने भी ये विद्वान हुए हैं, उन्होंने जौन जौन सी स्ट्रीम आप सोच सकते हैं, मेटलर्जी, एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब 1/0 इज नॉट डिफाइंड एज इंडियन मैथमेटिक्स का रूप है, जो वेदों द्वारा संचालित होकर पूरे विश्व में गया, और तब इन्हें भी लगा कि हाँ भाई 1/0 या 0/0 0 नहीं होता है, इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड। सो इन ऋषियों मुनियों द्वारा जो ये विद्या प्राप्त हुई थी, आगे बढ़ाई गई थी, हमें वो थोड़ी थोड़ी प्राप्त नहीं होती, और ये मेरा थोड़ा सा चस्का कह सकते हो इस ज्ञान को प्राप्त करने का, बिकॉज आई वाज अ साइंस स्टूडेंट विद मैथमेटिक्स। सो ये प्रश्न जैसे आपके मन में कभी उठते होंगे, मेरे भी मन में उठते थे कि ये किसने बनाया ब्रह्मांड, कब तक रहेगा, क्या इसका इनिशियल स्टेट है। There has been a extensive research in West world. I won't take the credits of scientists there, मगर वो भी अभी आकर इस स्टेज पर फंस जाते हैं कि भाई ये इनिशियल स्टेट क्या थी, जहां से भी शुरू हुआ था, उसकी जो इनिशियल फॉर्म है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन मिल जाए, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये अनुसंधान में बढ़ते हैं, विद्वानों से मिलते हैं, कहीं से इन्हें कुछ मिलता है, इंट्यूशंस आते हैं, और तब ये फिर जानते हैं कि कुछ ऐसा था ये इनिशियल स्टेज जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और अब मैं आपको बताती हूँ वो इनिशियल स्टेज क्या था, थ्रू ऑफ कोर्स द वैदिक फिजिक्स, और जो इन्हीं ऋषियों द्वारा शोध करके निकाला गया था। देखिए, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन को बढ़ाने का एक बहुत फंडामेंटल बेसिस है, एक फॉर्मूला है, अगर आप ये याद कर ले तो आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करने में इतनी ईजी हो जाएंगी। ये पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, इसमें सिर्फ 3 तत्व हैं, सिर्फ ये 3 तत्वों से बना हुआ है, और उन तीनों तत्वों का न तो कभी जन्म होता है, न कभी समाप्त होते हैं। आपने कभी कभी ये सुना होगा कि भाई आत्मा अजर है, अमर है, ये बिल्कुल सत्य है, और ये साइंस है। हमने इसको थोड़ा सा रिलीजियस टैग देकर हम बिल्कुल अपनी साइंस को ऐसा कर देते हैं कि भाई रिलीजन से बिल्कुल मत जोड़ो, ये तो बड़ा ऐसा हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा। नो, एक्चुअली रिलीजन जो शब्द है वो ठीक शब्द प्रयोग नहीं होता। धर्म जिसे कहते हैं, वो संस्कृत में धर्म जो शब्द बनता है, जो धारण करने योग्य है, धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है मनुष्य के, कुछ भी हो, इट कैन बी गुड मैनर्स, ग्रीटिंग गुड पीपल, बीइंग पॉजिटिव, ये सब धर्म है। मनुष्य के कर्तव्य जो हैं, उसके जो धारण करने योग्य गुण हैं जितने, सच्चाई, और जिसे हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा किसी के प्रति रोष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, ये सब धर्म के पदार्थ हैं, जिसका रूप इतना अभ्रंशित हो गया, मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। तो ये जो 3 पदार्थ हैं, इनमें से पहले है परमपिता परमेश्वर। See, you can't deny the existence of such a powerful source. People call it as the energy source, people call it as the ultimate one, people call it as कि कुछ तो है, उन्हें समझ में तो नहीं आ पाता, because वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। See, जिन्हें समझ में नहीं आता, वो बहुत ज्यादा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन पर डिपेंडेंट है। जो उनके माइक्रोस्कोप में दिख गया, जो उनके टेलीस्कोप में दिख गया, हाँ जी पकड़ में आ गया, वो इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है, उसे मान्यता दे देंगे। मगर जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज बियॉन्ड टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स, तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एंड फर्दर जो ये भारत वाले बताते हैं कि भगवान जी इस तरह के होते हैं, उस तरह के, उसके तो बिल्कुल नहीं होते। तो वो और ज्यादा हमारे जो बिगाड़े हुए रूप है उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं, एंड देन दे आर कंफ्यूज, they are they are stuck in a place where they don't know where to go ahead, and they have those intuitions कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ और पता लगाते हैं, तो वो नहीं हो पाता। सो पहला जो तत्व है वो परमपिता परमेश्वर है।
ये आज का टॉपिक नहीं है, दैट वी कैन टेक साइंटिफिकली, वी कैन टेक सम अदर टाइम। दूसरा तत्व है आत्मा, जो कभी न जन्म लेती है, जो न मृत्यु को प्राप्त होती है। इसकी भी शक्ति अपार है, परंतु ये ईश्वर के तरह नहीं कह सकते आप इसको, इसकी एक लिमिटेड एक्सटेंट है। सो परमपिता परमेश्वर, आत्मा, और तीसरा होता है प्रकृति। प्रकृति, इसको इस तरह से समझिए, जनरली जब प्रकृति शब्द आता है तो हम देखते हैं कि एनवायरमेंट होगा आसपास, पृथ्वी, सन एंड ऑल, दिस इज ऑल प्रकृति ऑल अबाउट। नो, प्रकृति एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती जो उत्साह मेरे अंदर है अभी बताते हुए, कि इट इज सच अ लाइक यू नो, इट्स लाइक ऐसा सोल्यूशन था, ये एक ऐसा पदार्थ था जिसके बारे में वाकई हमें पता होना चाहिए था। तो इसकी व्याख्या, जो तीसरा तत्व है प्रकृति, जो चेतन नहीं है, परमपिता परमेश्वर और आत्मा चेतन है, और जो प्रकृति है वो अचेतन है, वो स्थूल है। उसका रूप भी आप बिगाड़ सकते हैं, आत्मा का रूप कभी नहीं बिगड़ सकता। आत्मा के शरीर चेंज होते रहते हैं, उसका रूप कभी नहीं बिगड़ सकता। सो परमपिता परमेश्वर अपनी शक्तियों से इस प्रकृति को थोड़ा सा रूप इसका बदलते हैं, और उस प्रकृति तत्व से बदलते बदलते अरबों वर्षों में फिर जाकर ये हमारी पृथ्वी बनती है। I'll take you to the entire root of this creation. Please follow me. You'll be mesmerized to see how it is created. So ये जो प्रकृति तत्व है, महाभारत में भीष्म पितामह इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, बताते हैं पांडवों को जब वो मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, वेरी इंटेंस फॉर्म में, मगर वो ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान की एक गति होती है। टू ऑल माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू से, उत्साह और ज्ञान, इनकी गति होती है कि ये आप अपने आप में सीमित नहीं रख सकते, विच इज सो वंडरफुल। अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है या मुझे कुछ कोई नॉलेज बेस मिला है, तो उससे मैं अपना जीवन भी आसान करूंगी और आनंदित करूंगी, प्लस दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट इज इनहेरिटेड इन ह्यूमन बीइंग्स दैट वी शेयर इट। तो ये जो ज्ञान होता है, इसकी गति होती है, यू ट्राई टू शेयर इट विद पीपल अराउंड। सिमिलर इज विद आनंद, आप गम तो फिर भी छुपा जाओगे, लेकिन जो खुशी होती है ना, आनंद, ये बांट के बड़ा अच्छा सा फील होता है। सो ये सेलिब्रेशंस जो हैं हमारे, आप देखेंगे किसी भी सिविलाइजेशन में, जैसे हमारी है भारतीय संस्कृति, इसमें इतने त्योहार होते हैं भाई, ये उल्लास है, ये सेलिब्रेशन है, ये खुशी है जो हम बांटते हैं टुगेदर। वी कम टुगेदर, वी कम फॉरवर्ड कि भाई आज इतनी अच्छी खेती हुई, किसान बड़े खुश होके ये हर्षोल्लास से त्योहार मनाए जाते हैं। तो ज्ञान की भी एक गति होती है, इसी गति के उस रूप में इन्होंने ये देखा जो प्रकृति तत्व है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम आप महाभारत कोट कर रहे थे, महाभारत में तो शिवजी का टाइम फ्रेम ऐड नहीं हो रहा तो मैं बताती हूँ, भीष्म पितामह जो कोट कर रहे हैं वो महर्षि शिवजी के बारे में, जिन्हें हम महादेव जी के बारे में जानते हैं, वो वेदों के प्रकांड विद्वान हुए। उन्होंने भी इस तरह से रिसर्च की, अपने ब्रह्मांड को जाना और पहचाना, और ये जानने के बाद प्रकृति तत्व को बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने देखा। वे समाधि अवस्था में बैठकर इन वाइब्रेशंस को कैच करते थे और उनसे इंफॉर्मेशन लेते थे। आपको ये भी अभी स्पंदित नहीं करेगा कि भाई ये वाइब्रेशंस को कैच करके नॉलेज लेने की क्या बात होती है, बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ अस। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक मतलब इनको वेव्स जो हम कहते हैं, जो ब्रह्मांड में हमारे फैली हुई हैं, इससे हम आज यहाँ बैठे हुए 7 समंदर पार वी आर कम्युनिकेटिंग। व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल वाइब्रेशंस। वी आर कैचिंग सम वाइब्रेशन, सम फ्रीक्वेंसीज. Those rishi munis could catch some vibrations from the environment, and that they interpret in the form of pictures, images, written scripts. So उस फॉर्म में उन्होंने प्रकृति तत्व को जाना, समझा और बताया कि इसके कुछ गुण रूप होते हैं, इसके कुछ गुण हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो प्लीज लिसन केयरफुली, उन्होंने कितने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया, जो भीष्म पितामह पांडवों को बता रहे हैं कि प्रकृति जो होती है ये अव्यक्त होती है, आप इसको पूर्णता से जान नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि आत्मा का एक लेवल होता है, वो उसके बाद बहुत ज्यादा हर चीज अल्पज्य है, जिसे हम शब्द, बड़ा संस्कृत का बड़ा अच्छा शब्द है अल्पज्य। अल्प मतलब छोटा, ज्ञान, अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि, जितनी बुद्धि है उसकी वो इतना जान सकता है। तो पूरी तरह से ना तो प्रकृति उस समय व्यक्त होती है कि हम उसके सारे फीचर्स जान लें, मगर मोटे मोटे जो 8 फीचर्स शिवजी कुड अंडरस्टैंड एंड देन प्रेजेंट टू ऑल ऑफ अस, to the next generations, was it has zero temperature. एक ऐसा पदार्थ जो चारों दिशाओं में, ऐसे तो दिशाएं 10 होती हैं, मगर जैसे हम स्थूल उसमें रूप में कहते हैं,
चारों दिशाओं में एक सार फैला हुआ है। जहां तक आप सोच सकते हैं तब तक तो ब्रह्मांड भी नहीं है। मैं आप देखिए, मैं इनिशियल स्टेट की बात कर रही हूँ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन ये हमें पता नहीं होता, इस वजह से हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब सृष्टि की रचना होती है, जो हमारा बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के अपलिफ्टमेंट की, टीचर्स ट्रेनिंग, जो भी वॉर्स और जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? मनुष्य के लिए हो रहे हैं। मनुष्य को यही नहीं पता वो उत्पन्न कैसे हुआ है, आया क्यों है, ये ब्रह्मांड उसके लिए क्यों रचा गया। सो ये जो ब्रह्मांड की रचना होती है, ये इस प्रकृति पदार्थ से हो रही है जो चारों दिशाओं में एक साथ फैला हुआ है, जिसमें 0 टेम्परेचर है, इनफिनाइट डिमेंशंस हैं, इट्स कंप्लीटली डार्क। डार्क मींस उसका एक्सटेंट आप पकड़ नहीं सकते, इतना डार्केस्ट फॉर्म। इट हैज 0 मास, 0 एनर्जी, वैक्यूम स्पेस, 0 फोर्स, कोई हलचल नहीं है, नितांत शांत, नो मोशन, कोई वाइब्रेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नो फोर्स एट ऑल, कोई साउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये बिल्कुल नितांत शांत 0 by 0 की तरह, अनडिफाइंड की तरह, जिसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त अवस्था में ये ऐसा है जैसे एक रूम में आप जाएं और मान लीजिए वहां 40 बच्चे सो रहे हो, तो आप कमरे में जाएंगे तो आपको लगेगा कमरा खाली है, मगर एक्चुअल में दैट रूम इज नॉट एम्प्टी, इट इज ऑल फिल्ड विद प्रकृति तत्व। ये प्रकृति तत्व था। अब क्रिएशन कैसे होती है? इसमें पहली वाइब्रेशन उत्पन्न होती है ओम की। अब ओम को भी बड़ा रिलीजियसली लिया गया है। कुछ साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट फिलिप करके हैं, आप अगर उनको पढ़ना चाहेंगे, जो भी साइंस से थोड़ा रिलेट करते हैं या जिनके मेरे जैसे ये थोड़े से एंटेनाज ऑन रहते हैं, टू नो द क्रिएशंस, टू नो द पीपल, टू सी द इमोशनल बैलेंस बिटवीन प्रकृति एंड ह्यूमन बीइंग्स। क्यों हमें पहाड़ों पे जाके अच्छा लगता है, क्यों बीच के पास अच्छा लगता है, क्यों वी वांट टू गेज स्टार्स, क्यों हम अर्बन लाइफ को क्रिप करते हैं इतना ज्यादा, क्या कमी रह जाती है? वो प्रकृति से कनेक्ट कम हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि अचेतन प्रकृति और चेतन आत्मा में ये कनेक्ट है। ये क्या कनेक्ट है? ये यही कनेक्ट है कि आत्मा और प्रकृति का, मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्रकृति से जो शरीर बना हुआ है ये भी प्रकृति तत्व से बना हुआ है, और आत्मा और शरीर का तो बहुत लिंक है। तो आत्मा और शरीर का लिंक है, आत्मा का और सारे तत्व का प्रकृति से जो बने हुए हैं उन सबसे बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध। अब इस ओम वाइब्रेशन में एक ये बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशन होती है, बहुत माइल्ड। आप किसी अभी करंट जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें आप इसे पकड़ नहीं सकते। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अलका जी, ये जो ओम होता है ये इस तरह से ही होता है क्या कि जैसे आपने बोला, हमने सुना, हमारी बुद्धि ने रिसीव किया, ये वही ओम है क्या, साउंड वेव? आंसर वुड बी नो। क्यों? देखिए, जो भी थोड़ा सा फिजिक्स से थोड़ा टच में रहे हैं या आपके ऊपर इतना बड़ा दायित्व है, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनको ये थोड़ा सा समझ, मोटी मोटी समझ देखिए कि मैंने जब ओम बोला, जो उच्चारण हुआ, दिस इज अ वेव, दिस इज अ साउंड वेव। ये तरंग जो है ओम की वाइब्रेशन, ये बैखरी, इसको जो मोड है इसको हम कह सकते हैं बैखरी अवस्था में ये कानों तक पड़ी, सो दैट्स अ साउंड वेव। ये एक तरंग है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अब ये कानों से कौन रिसीव करता है? ये जाती है बुद्धि के पास। ये चैनल देखिए क्रिएशन का, हमारे कानों से फिर स्टेशन ट्यूब से होती हुई ये हमारी बुद्धि तक जाएगी। ये जो फॉर्म है ये बैखरी नहीं है, इसको हिंदी में, संस्कृत में मध्यमा कहते हैं। ये थोड़ी रिफाइन हो गई है, कानों के पर्दों से ये रिफाइन होकर और सूक्ष्म हो गई है, फ्रीक्वेंसी और कम है, वाइब्रेशन थोड़ी सी और रिफाइन हो गई है, छन कर ये बुद्धि तक जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नाउ इट इज सिग्नल वेव, इट इज नॉट द साउंड वेव। ये तरंग अब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई है, अंदर पूरे चार्जेस हैं, होते हुए बुद्धि तक गई है। अब आप देखिए, क्या बुद्धि से रिसीव करके कुछ इंस्ट्रक्शंस लेगी? जैसे मैंने कहा भागो, तो क्या बुद्धि ये लेकर भाग सकती है? नहीं, बुद्धि स्थूल है, बुद्धि अपने आप में एक जड़ पदार्थ है। तो भाई ये एक्शन कौन लेता है फिर? नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मुझे बड़ा होता था कि भाई ये फिर जब बुद्धि भी स्थूल है, बुद्धि अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, मृत्यु के बाद तो बुद्धि, ब्रेन तो रहता है जो स्थूल दिखता है, सारी नर्व्स भी रहती हैं, ऐसा क्या चला जाता है भाई कि कुछ समझ नहीं आता, या बिल्कुल वो स्थूल है? ऐसा जाता है, शरीर से जो अलग होता है वो होती है आत्मा। सो द रिसीवर इज आत्मा। सो बुद्धि से डायरेक्टली आत्मा तब भी रिसीव नहीं करेगी। नाउ वी गो टू द थर्ड स्टेज।
I'll repeat. First form from my कंठ to your जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा, वहां तक जाने के लिए ये साउंड वेव थी बैखरी अवस्था में, वहां से फिल्टर होकर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में बुद्धि तक जाती है। बुद्धि जो होती है ये मध्यमा के रूप में इसको रिसीव करती है, इसको फर्दर रिफाइन करती है, इस इंफॉर्मेशन को और सूक्ष्म बनाती है और ले जाती है मनस तत्व तक, जिसको हम सब मन कहते हैं। हमारा मन नहीं कर रहा, आज मन बड़ा अच्छा है, आज बड़ा मन खुश है, आज बड़ा मन शांत है। ये क्यों है? ये जो इंफॉर्मेशंस हैं ये मन तक जाती हैं। मन तक ये जो जाती हैं ये अपनी पश्यंती अवस्था में होती हैं। जो इंफॉर्मेशन है वही वाइब्रेशंस जो ओम मैंने कहा था, ये आप तक पहुंच रहा है, आपके मनस तत्व तक, और इतना क्विकली होता है, फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये तुरंत आपके मनस तत्व में पहुंचता है। मनस तत्व इसे रिसीव कर लेता है और फिर इसे फर्दर रिफाइन करता है एंड यूजर के लिए, जो और सूक्ष्म है, जो और ऐसा पदार्थ है आत्मा, जो परमेश्वर सबसे, जो परमपिता परमेश्वर हैं, दैट इज द माइन्यूटेस्ट, वो तो सर्वव्यापक है। हम कहते भी नहीं है, हमारे बड़े कहते थे कण कण में है, कहने का यही तात्पर्य है। इट इज सो आप उनको गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते। वो उसके बाद आत्मा बहुत सूक्ष्म है, और इससे थोड़ा सा और आप ज्यादा ले लो तो प्रकृति होती है। प्रकृति को फिर भी आप थोड़ा बहुत व्यक्त, उसमें 8-9 गुण इसके बताए जा चुके हैं। सो जो रिसीवर है वो इतना सूक्ष्म है, तो उसके लिए खाना चबा चबा के, जैसे नहीं पेट तक आप पूरा रेडी करके भेजो ताकि एब्जॉर्ब हो जाए, सो वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो, इसके लिए आत्मा तक पहुंचने के लिए मनस तत्व जो होता है, जो स्थूल है, वह इसे कन्वर्ट करता है परावस्था में। यही वो वाइब्रेशन की फॉर्म है जो प्रकृति में सबसे पहले उत्पन्न होती है। प्रकृति बिल्कुल शांत है, ओम की परा अवस्था वाली वाइब्रेशन इसमें सबसे पहले कंपन उत्पन्न करती है। पृथ्वी हल्का सा डिस्टॉर्ट होना शुरू करती है, जो प्रकृति तत्व है वो अपने आप में हिलने लगता है, घर्षण करने लगता है, थोड़ा मिलता है, थोड़ा दूर जाता है, कंपन और दूसरे ओम से, जो ओम वाइब्रेशन होती है जिसने हमने कैच किया, जिसमें मैंने आपको साइंटिस्ट फिलिप का भी नाम दिया, जब वे नासा में थे उन्होंने बताया कि सूर्य से भी इस तरह की वाइब्रेशंस आ रही हैं, जिसका जब आप ओम, मनुष्य जब ओम बोलता है वो वाइब्रेशन, या गाय जब करती हैं, ये बिल्कुल पहली फॉर्म ऑफ फोर्स है जो पूरे प्रकृति पदार्थ में ब्रह्मांड से पहले, बनने से पहले, करोड़ों वर्ष पहले ये स्पंदन पैदा करती है। अब धीरे धीरे इसमें कंडेंसेशन हो रहा है प्रकृति तत्व में, वो और हिल रही है, पार्टिकल्स आर ज्वाइनिंग, जो प्रकृति तत्व के पार्टिकल्स। अभी भी आप ये याद रखिए कि पार्टिकल फॉर्म में है नहीं, ये एक मीडियम है, एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसा तत्व है जो बस हिल रहा है, लेकिन फोर्स और ज्यादा होते जा रहे हैं। जैसे लहर है, वो दूसरी से मिली, वो बहुत बड़ी लहर, और बड़ी लहर, और बड़ी लहर, इस तरह से होते होते ये जो फोर्स होता है फिर ये बढ़ता चला जाता है। मैं आपको एक कोट करती हूँ, क्योंकि जब हम बच्चे थे, हम जब पढ़ते थे आइंस्टाइन, न्यूटन, बिग बैंग और यही सब, इन सब में हमें यही बताया जाता था बेसिस। तो बिग बैंग के समय पे भी ये हुआ कि एक छोटा सा बिंदु है, उसमें विस्फोट होता है। तो सवाल आता है कि भाई ऐसा क्या रिएक्शन होता होगा कि वो उसमें विस्फोट हो जाता है, और पहले नहीं होता अभी हो जाता है, या कब होता है, या विस्फोट बाद होते हैं। दूसरा प्रश्न आता था कि जब विस्फोट के बाद सब कुछ दूर दूर जा रहा है, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब कुछ अपने पास चिपकाए हुए, सूर्य इन 7 प्लैनेट्स को घुमा रहा है, जो 9 प्लैनेट्स हैं इसके, एक्चुअली ये 9 नहीं है, होते 7 ही है। धीरे धीरे आपको पता चला होगा, जैसे प्लूटो अब हटा दिया गया है। आप धीरे धीरे आएंगे तो आप ये वैदिक फिजिक्स के ऊपर जैसे जाएंगे ना, ये 7 दिन ये उन्हीं ग्रहों की वजह से ही बने हुए थे। हालांकि थोड़ा सा रिलीजियसली लोगों ने इसको इतना रूप बिगाड़ दिया है कि हमको लगता है भाई ये तो झंझट है। नो, एक्चुअली ये प्लैनेट्स थे जो ऋषियों ने पता कर लिए थे, उनके अपने टेलीस्कोप्स हुआ करते थे उस समय पर, जो बहुत एडवांस थे। बिलीव मी यू, वो इतने एडवांस थे, इफ यू गो टू वैदिक फिजिक्स यू विल रीड अबाउट देम। तो उन्होंने इन नक्षत्रों को पहले ही जान लिया था, उन्होंने इन प्लैनेट्स को पहले ही जाना था, ये 7 ही होते हैं। Anyways, will not go on to that. The point was कि ये सब अपने अपने फोर्सेस में इकट्ठे हैं। तो भाई ये रोकने की प्रक्रिया कैसे हुई? जब बिग बैंग सबको स्फोटित करने के बाद सब दूर दूर स्कैटर हो रहे हैं, तो ये कुछ प्रश्न है जिसमें अगर आप जैसे इजनबर्ग है, इनसे हमने कम्युनिकेशन भी किया था, हमारे जो वैदिक साइंटिस्ट थे उन्होंने उन्हें ईमेल्स भी किए, क्वेश्चंस पूछे ये सारे,
कि भाई जब जीरो मास है तो फिर mc इज इक्वल टू mc स्क्वायर आपका तो इक्वेट नहीं हो पा रहा, ये कैसे आप रिलेटिविटी वाली थ्योरी कैसे करोगे? तो वो जवाब नहीं दे पाते थे प्रश्नों के, तो इसलिए वो शांत हो जाते थे, मेल के आंसर्स नहीं आते थे। हमारे जो वैदिक विद्वान हुआ करते थे, वैदिक फिजिशियंस होते थे, फिर वो और उन्हें प्रश्न करते थे, बहुत क्रिएटिव प्रश्न, कि भाई हम इसका उत्तर जानना चाहते हैं, आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, देखिए ये इन मंत्रों द्वारा इस तरह से भी ये नॉलेज बेस है, फॉर्मूलाज हैं, दीज फॉर्मूलाज वी कैन वर्क ऑन टुगेदर। आप जानते ही हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी बाहर कितनी पूछ है, लेकिन बाहर की पूछ है इसे हम पूछते हैं, इसलिए वी गो टूवर्ड्स वो। इसीलिए मैं कोट भी कर रही हूँ कि जो ये नासा के साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि दैट वाज द वाइब्रेशन coming out continuously from the sun, where fission and fusion reactions are going on continuously. अब धीरे धीरे जब इनमें ये फोर्सेस होते हैं, प्रकृति तत्व थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू करता है, धीरे धीरे ये जो वाइब्रेशंस होती हैं जिनको छंद रश्मियां कहते हैं, ये फोर्स और गाढ़े होते जाते हैं और फिर निर्माण होता है। अभी तक देखिए हम निर्माण की पद्धति में हम कैसे आए हैं, प्रकृति तत्व, प्रकृति तत्व के बाद ये थोड़ा सा कंडेंस होता है और फिर बनता है महत्तत्व, महत्तत्व के बाद अहंकार, थर्ड स्टेज, अहंकार के बाद ये मनस तत्व, जो मन हम कहते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की थी, दैट्स द फोर्थ स्टेज। मन के बाद मन फिर स्पंदित हो रहा है, मन वही पदार्थ है, चारों तरफ फैला है, मुझ में, आप में, पशुओं में, प्लांट्स में, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। ये क्योंकि कॉमन मनस तत्व हम सब में फैला हुआ है, इसीलिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये वही पदार्थ है जो वाइब्रेशन से, छंद रश्मियों से, जिसका बेसिक फोर्स जो था वो ओम था, ये हिलते हिलते कंडेंस होते होते ये मनस तत्व बन जाता है। अब ये मनस तत्व जो फोर्थ स्टेज है, मनस तत्व धीरे धीरे फिर कंडेंस हो रहा है, जिसे हम हिंदी में संपीड़न कहते हैं। कंडेंस होते होते बनता है आकाश तत्व। आकाश तत्व पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हम सब जानते हैं, नहीं सब कहते थे बड़े लोग कि पंच महाभूत शरीर 5 तत्वों से बना है, या हम सब 5 तत्वों से बने हैं, मृत्यु के बाद इनमें ही विलीन हो जाएंगे, है ना। मगर हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपको पता है इसके पीछे कितनी बड़ी साइंस, कितनी रिसर्च छुपी हुई है। लाखों लाखों वर्ष ऋषियों ने इस पर शोध किए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ रच दिए जो हमें इतने दुर्लभ है, जिन्हें you won't believe the scientists from NASA are hiring these from our old libraries. वो मंगाते हैं इन्हें, और हमारे यहाँ से जो वैदिक फिजिशियंस हैं उनसे बहुत सारे जो कहना चाहिए छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन उस रूप में वो मंगाते हैं, और हम बिल्कुल बिना पेटेंट लिए, क्योंकि हमें शुरू से ही कहा गया है कि भाई ज्ञान सबके लिए, मैंने बताया ना जिसकी गति होती है सबके लिए, हम पेटेंट नहीं लेते। आप हल्दी पे पेटेंट ले लेते हो, आप गौमूत्र पे पेटेंट ले लेते हो ना, तो बुद्धि थोड़ी सी संकीर्ण है। ज्ञान सबके लिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो इस रूप में। तो वो हमसे पूछते हैं, पहले तो वो पूछते नहीं है, जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बिल्कुल थक जाते हैं, उन्हें लगता है हाँ यार ये कुछ बोलते तो हैं, 5 तत्व होते हैं और 5 में विलीन हो जाते हैं, ऐसा क्या होता होगा। फिर वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, अपने नाम से छापते हैं, एंड देन वो हमारे कोर्स में आता है और हम उन्हें पढ़ते हैं, और फिर हम फिर से ऐसे ही होता है, वैवश मुनि को भूल जाते हैं, आर्यभट्ट को भूल जाते हैं, वैज्ञानिक गार्गी को भूल जाते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये जो आकाश तत्व बन रहा है, इस वाइब्रेशन के ऊपर आपने अगर ध्यान दिया हो, मैं निकोला टेस्ला को कोट करना चाहूंगी हियर, उनको भी ये इंट्यूशन हुआ था कि भाई ये बिग बैंग देख लिया, ये प्रश्न आते हैं हमारे अंदर भी और हम जवाब नहीं दे पाते इनका। सो उनको भी ये लगा और उन्होंने ये कोट किया, अलाउ मी टू रीड इट फॉर यू। If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. और इसी की हमने बात की, ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 3 ही तत्व हैं। ये बन किससे रहा है? प्रकृति तत्व से, और वही एक तत्व है। आप किसी भी अगर आप शोध में उतरेंगे, किसी भी चीज में आप जाएंगे, आपको घूम फिर के यहीं पर आना पड़ेगा, और तब ये पता चलेगा ये प्रकृति पदार्थ है, जो वाइब्रेशंस इसमें हो रही हैं उसी से अलग अलग रूप, स्थूल रूप लिए जा रहे हैं। सो टेस्ला जी को भी उन्होंने काफी इस पे शोध भी किया था, एंड वेरी इंटेलिजेंट, आई हैव ह्यूज रिगार्ड्स फॉर हिम। तो उन्होंने ये जब वाइब्रेशंस पकड़ी थी, इन्हीं वाइब्रेशंस की मैं बात बता रही हूँ कि ये जो पहला तत्व बना, ये 5 भूतों वाला पहला तत्व है, जो हमारी 5th स्टेज है, ये है आकाश तत्व। कृपया करके इसे आकाश मतलब नीला आसमान से ना कंफ्यूज करें।
ये लेटली मुझे भी पता चला। 5 भूत जो होते थे हमारे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसे मैं कैसे समझा करती थी? आकाश मतलब नीला आसमान। आई एम श्योर हम सब ऐसे ही समझते थे कुछ समय पहले तक, और आज मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं आपसे ये बात शेयर कर पा रही हूँ कि नहीं, ये इनका एक्चुअल रूप जानिए आप। इसीलिए इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन है हमारा, इट्स गेटिंग डिप्राइव्ड डे बाय डे। हम बिल्कुल अलग चीज पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं अग्नि शीतल होती है, अग्नि का रंग लाल होता है, मैं आपको बचपन से यही बताते जाऊंगी, और अब अग्नि के आप जब संपर्क में आएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा ही आज हमारा समाज है, वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा कि क्यों मुझे, मतलब हाउ टू रिएक्ट टू माय फेलो बीइंग्स। सोशल क्वेश्चन जो है, फेलो बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हाउ टू इंटरेक्ट विद देम। ये क्यों बने हैं, ये मेरे लिए किसी और के लिए, मैं इनका उपभोग कैसे करूं? इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको इन तत्वों के बारे में, मुझे भी एक्चुअल नहीं पता कि ये तत्व है क्या। थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये है क्या। आकाश तत्व वो मनस तत्व का ऐसा कंडेंस्ड रूप है जिसमें पहली बार ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है। अब कंडेंस इतने हो चुके हैं, वो जो तत्व है वो इतना मनस तत्व जो वो इतना पास आ चुका है, अब उसमें वो फोर्स जो है जो छंद रश्मियां हैं, ओम की जो बढ़ी हुए फोर्सेस हैं, वो और उस पर काम कर रही हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म हो रहा है। महर्षि सुश्रुत हैं, वे कहते हैं अपने ग्रंथ में, बताते हैं वे कि जो स्पेस है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे स्पेस के रूप में जानता है, वही हमारा आकाश तत्व है। स्पेस सोचिए, दैट इज नॉट द नीला स्काई, स्काई इज डिफरेंट। जो स्पेस तत्व है, यह सत्व बहुमूलम आकाशम, कहने का मतलब बहुत लाइट वेट, चारों तरफ फैला हुआ, प्रकृति स्पंदित हो रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी ही प्रकृति मनस तत्व से आकाश तत्व बन गई है, अभी भी प्रकृति कहीं कहीं पर मनस बन रही है, कहीं कहीं पर अहंकार बन रही है, कहीं कहीं पे महत तत्व बन रही है। मगर जो हम तक आने तक, मैं आपको वो जो जर्नी पे ले जा रही हूँ इस ब्रह्मांड में, जहां हम अभी सोलर सिस्टम में, यहाँ तक आने के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आकाश तत्व की आवश्यकता होती है। वो आकाश तत्व अब बन रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, बहुत लाइट वेट है ये। इसमें फिर से कंडेंसेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, और संपीड़न से दूसरा तत्व उत्पन्न हो रहा है जिसे हम कहते हैं वायु। वायु तत्व में आप समझिए कि फील्ड्स जनरेट हो रही हैं। अभी तक मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और जो फोर्सेस होते हैं और जो पुल्स होते हैं उनके बारे में नहीं, अब यहाँ पर ये फील्ड्स जनरेट हो रही हैं, क्योंकि और कंडेंस हो गया है पदार्थ धीरे धीरे। वैश्विक दर्शन में ही इन फील्ड्स को कहते हैं स्पर्शवान वायु। उसका एक गुण बताया, स्पर्शवान वायु मतलब टच, स्पर्श। अब आपको ये स्पर्श मतलब आपस में थोड़ा सा अट्रैक्शन, थोड़ा सा टुगेदरनेस, ये स्पर्श जो फीलिंग हमारी त्वचा में है, यह भी वायु के गुण से है। अगर वायु गुण ना हो, अगर वायु तत्व ना हो, स्पर्श नहीं फील हो सकता, स्पर्श आप नहीं ले पाएंगे। तो ये वो वायु तत्व है जो स्थूल है, आप इसको एयरवेयर ऐसे में मत समझिए, ये स्थूल तत्व है प्रॉपर। जब कभी हमारे साइंटिस्ट कुछ अनुसंधान करेंगे और तब इनको उन कहना चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा, और जो एडवांस होंगी, जो पुराने हम पकड़ चुके हैं, ये पकड़े जाएंगे, तब आप मुझे याद करो, अरे अरे हाँ यार कुछ कहती तो थी कि इस तरह से कुछ वायु तत्व है और आकाश तत्व है। अब आते हैं इसमें और कंडेंसेशन हो रहा है, यह थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से, हल्का सा धीरे धीरे, अब हल्का सा एक इसमें रूप उत्पन्न हुआ है। अभी तक सब एवरीथिंग वाज डार्क, हियर इज द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स ऐसी कि सोचिए फोटॉन्स भी नहीं बने, जिनसे हमें दिखता है फोटॉन्स, जो लाइट सोर्स होते हैं वो भी नहीं बने, हल्का सा बहुत माइल्ड। अगेन वी कैन नॉट कैच विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। इसमें ये तेज रूप आया है। इसको किस तरह से ऋषि बताते हैं, तेजो रूप स्पर्शवत, तेज भी है, स्पर्श रूप वायु से है क्योंकि वायु से ही कंडेंस होकर आई है, हल्का रूप है आकाश तत्व का, और आकाश तत्व का इसमें थोड़ा सा एक ये भी है ओपननेस, जो स्पेस का जो गुण होता है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये वायु तत्व है। हाँ, हम अग्नि की बात करें, तीसरा तत्व अग्नि है। अग्नि में ये तीनों गुण है, अग्नि का अपना रूप, वायु का अपना स्पर्श, और आकाश का अपना थोड़ा सा लाइट वेटनेस और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चौथा तत्व बन रहा है, स्टिल अग्नि कंडेंस हो रही है, अग्नि तत्व
नॉट द फायर वन, प्लीज आई रिमाइंड, नॉट द फायर वन, द अग्नि तत्व जो है इसमें हल्की सी लाइट है, हल्की सी जो इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज है, थोड़ी सी ऊष्मा है, बहुत हल्की ऊष्मा है। फोटोन के बनने की ये बिल्कुल आप समझ लो बेस है, ये फोटोन अभी भी नहीं बना है, ये बिल्कुल बेस है, इसी से फोटोन बनेगा, हल्का सा ये बेस है। अब हम आते हैं चौथे पदार्थ के ऊपर, कंडेंसेशन हो रहा है, अब बनता है कॉस्मिक क्लाउड, इसे कहते हैं जल। जल वो जल नहीं जो हम पीते हैं, अब एटम्स, आयनिक स्टेट्स, ये सारी आ रही। इसमें अब क्या गुण ऐड हो गया? रस, जल रस। जब हम जैसे कोई पदार्थ जीभ पर लगाते हैं तो जो सलाइवेशन होता है, दैट्स द रस रूप। अगर रस जल तत्व ना हो हमारे शरीर में, या ये जो प्रकृति जिससे हमारा जो शरीर बना हुआ है, सृष्टि निर्माण में जो प्रकृति कंडेंस हो के जल तत्व से हमारी शरीर बना हुआ है, अगर ये जल तत्व ना हो तो हम वो रस नहीं ले सकते। वो जो रस इवन बनता भी है, बनने का भी इसमें जल गुण है, और जो फीलिंग आती है, जो रस की जो फीलिंग आती है, जो स्वाद आता है, ये रस तत्व भी नहीं होगा अगर जल तत्व ना हो। इसमें ही कॉस्मिक क्लाउड में थोड़ा सा धीरे धीरे ये ग्रह नक्षत्र बनने वाली स्टेज आ गई है। इसमें ही फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आयंस बन चुके हैं, एटम्स बन रहे हैं, अब ये धीरे धीरे मिल रहे हैं और ये कंडेंस हो रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कभी कि जैसे मुझे थोड़ा सा पढ़ तो लेती थी मैं कि भाई शायद ऐसे बना होगा कि अमीबा हुआ होगा, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड बताता है एवोल्यूशन का तरीका। अमीबा धीरे धीरे फिर कुछ एटम्स बने होंगे, फिर जल आया होगा, जल किसी फिर किसी उससे आया होगा, फिर धीरे धीरे उसमें अमीबा वगैरह से कुछ और पदार्थ बने होंगे, और फिर जीव ने मछली का रूप लिया होगा, फिर मछली को चलने का मन किया होगा तो वो टॉर्टोइस बनकर मतलब लैंड पर आ गया होगा, फिर धीरे धीरे उससे कुछ और इवोल्यूशन हुआ होगा, फिर धीरे धीरे उनके 4 पैर से 2 हो गए होंगे, फिर धीरे धीरे चिंपैंजीज होंगे, एप्स बने होंगे, फिर धीरे धीरे मनुष्य बन गया। तो ये मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता था कि भाई ये इतने इवोल्यूशन में फिर वो खत्म हो जाने चाहिए, सारे मनुष्य बन जाने चाहिए, क्यों आधे मनुष्य बने आधे नहीं बने? तो ये थोड़ा सा मैच नहीं हो पाता था। नाउ आई अंडरस्टैंड कि इस तरह का कुछ नहीं था, ये सारा आपका जो जल तत्व था, ये पूरी प्रकृति ही, जो पूरी प्रकृति है उसमें से जल तत्व बन चुका था। ऐसा नहीं था कि पूरी प्रकृति ही जल बन गई थी। जब ये ग्रहों का निर्माण होना था, सृष्टि का निर्माण होना था, तब ये जल तत्व जरूरी होता था, इसलिए ये कुछ पोर्शन में बना होगा। और फिर इसके बाद इस कॉस्मिक क्लाउड में, इस जल तत्व में, फिर कंडेंसेशन के बाद पृथ्वी तत्व बना। Again, the Prithvi Tattva is not the earth, the Prithvi we are talking about. It is again the condensed form of Prakriti, the elementary base, the initial state of entire creation. उसका condensed form है पृथ्वी, और उस पृथ्वी में अब गंध तत्व ऐड हो गया। हमने लाइन से देखा कि बहुत ग्रेविटेशनल आकर्षण फोर्स है, स्पर्श है, और हल्का सा एक ऊष्मा इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा है, फिर उसमें रस आया है जल तत्व में, और अब इसमें गंध भी आ गई। ये जो हमारी नाक में गंध है, वेस्टर्न फिजिक्स या वेस्टर्न साइंस इसे भी नहीं समझ पाते ये क्या है। ये वही पदार्थ है, स्थूल पदार्थ है, वही वो एटम्स हैं, किसी उसके जो नाक में जाकर, आपको नहीं लगता कि जैसे जो अदर एनिमल्स होते हैं, दे स्निफर डॉग्स एंड ऑल, दे कैन स्निफ जितनी स्मेल्स होती हैं, वेरी टाइप ऑफ स्मेल्स, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे छिद्र इस तरह से बने हुए हैं कि हम उस पृथ्वी तत्व को नहीं ले जा पाते अपने अंदर, और इसलिए हम सारी गंधों को नहीं जान पाते। मगर जो एक कुत्ता होगा, द एनिमल, उसकी जो ये घ्राण शक्ति होती है, दैट्स सो प्रिसाइज दैट वो पृथ्वी तत्व को अपने अंदर इस तरह से ले जाता है, और उसके शेप साइज में जिससे वो लेकर जा रहा है नासिका से अपनी, वो मॉलिक्यूल्स फिट हो जाते हैं, और तब वो तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, अच्छा भाई ये तो ये वाली चीज थी, ये तो खाने लायक नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। सी द फिजिक्स बिहाइंड इट, सी द साइंस बिहाइंड इट। आप जब तक ये जानेंगे नहीं कि भाई ये गंध होती क्या है, गंध से पता क्या चलता है, ये गंध से वो प्रकृति तत्व है जो चारों तरफ फैला हुआ है, वो प्रकृति तत्व के जो, आप इसको एटम्स ही ले लो, अब एटम्स तो बन चुके हैं तो वी कैन कॉल इट एज एटम्स। वो बहुत छोटे छोटे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, वो जा रहे हैं आपके उसमें, वो इंफॉर्मेशन जा रही है, देन यू कैन रिलेट कि ओके दिस इज रिलेटिंग टू द गंध की, जो आपका पृथ्वी तत्व है।
अब होते होते इस पृथ्वी तत्व में और कंडेंसेशन होता है और वाइब्रेशंस होती हैं, और इसके बाद धीरे धीरे इन ग्रहों का, नक्षत्रों का, सूर्य का निर्माण होता है। ये पहले ही बिल्कुल इवोल्यूशन के, जब ये करोड़ों वर्ष में हो रहा है, और होने के बाद तुरंत ऐसा नहीं होता कि भाई आपका जो सन है वो बीच में आ गया और तुरंत अर्थ ने रिवोल्यूशन शुरू कर दिया। इनको 60 रिवोल्यूशंस लेने पड़ते हैं टू एक्चुअली बैलेंस द फोर्स, कहते हैं ना, अपनी कक्षा में आने के लिए उनको 60-70 रिवोल्यूशन के बाद वो स्थित होती है प्रकृति, जिसे हम अर्थ कहते हैं, हमारी प्रकृति जिसे हम जानते हैं प्रकृति, वो वाली प्रकृति जिसके बारे में मैं इतना व्याख्यान कर रही हूँ, जो असल में प्रकृति है। आपको पता है ये शब्द भी प्रकृति, वो प्रकृति मतलब पूरे ब्रह्मांड का प्राकृतिक रूप है। दैट्स व्हाई नेचुरल स्टेट, नेचर नहीं, हम नेचर कहते हैं, नेचर, नेचुरल स्टेट ऑफ एवरीथिंग इज दैट प्रकृति। इसी वजह से ये सृष्टि है, फिर ग्रह नक्षत्र बनते हैं, फिर ये चलता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि ये क्या एक बार बना या फिर ये बार बार बनता रहता है? तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द लिसनर्स, कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये कितनी बार होता है, क्या होता है, तो एक मैजिकल फिगर लिखिए। ये मैं अपने स्पीकर्स, अपने लिसनर्स को हमेशा बोलती हूँ कि ये इतना बेसिक था कुछ समय पहले तक, आज से 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल तक, ये सब बच्चे बच्चे को घर में पता हुआ होता था कि जो पूरी सृष्टि है वो 14 मनवंतर की होती है। एक बार में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें कई संवत्सर होते हैं, कई युग आते हैं, जो सतयुग से शुरू होता है। देखिए ये मिथ बन गया है, लोग इसे इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बट एक्चुअली दीज वर द टाइम कैलकुलेशंस डन बाय आवर साइंटिस्ट्स। घर में कोई भी छोटा मोटा हवन होता था, गृह प्रवेश, तो पुरोहित कहता था ये बात कि भाई आप इस स्पेस टाइम में हैं, इस जगह पर, इस नक्षत्र में, इस काल में, इस खंड में, इस मनवंतर में मैं ये यज्ञ करा रहा हूं। तो वो बच्चा जो सुन रहा होता है उसे पता होता था कि भाई ओके, ये सृष्टि जो होती है, जो मैजिकल नंबर है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक सृष्टि होती है। ये सृष्टि 14 मनवंतरों में डिवाइडेड है, और फिर इसमें ही युग होते हैं, चतुर्युग का खंड होता है, और ऐसे ऐसे करके ये 71 चतुर्युग चलते हैं एक मनवंतर में। सो दैट कैलकुलेशन इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वन। जिसे इंटरेस्ट हो प्लीज गो थ्रू इट। मुझे तो बड़ा आनंद आता था जब मैंने, ओहो दिस इज द कैलकुलेशन। सो अब आप मुझसे पूछेंगे, जब ये सृष्टि जो निर्माण हो गई, हमने देख ली कि भाई हाँ सूर्य आ गया अपनी कक्षा में, अब परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे अनेकों सोलर सिस्टम्स हैं जो अपने बड़े सन, बड़ा सोलर, जिसको अभी आप देखोगे भी बाहर के वेस्टर्न उसमें बताते हैं नेबुला है, और बड़े बड़े सन, नए नए सन दे आर एक्सप्लोरिंग। तो ये जो आ रहे हैं अपनी कक्षाओं में सेट हो गए हैं, तो अब ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहेंगे। सो एक सवाल होता है, फिर क्या हम अब किस अवस्था में है, क्या समय? आई विल गिव यू एग्जैक्ट टाइम। वी हैव लिव्ड दिस प्रकृति का जो ये वाला रूप है, अभी सृष्टि जिसमें हम हैं, जिसके कलयुग में हम अभी रह रहे हैं, ये 1 अरब 96 करोड़ वर्ष जी चुकी है, जो अपनी एज है। सो 4 अरब 32 करोड़ में से 1 अरब 96 करोड़, मतलब कि आधा लगभग। हम अभी 6ठे मनवंतर में हैं, 7वां लगेगा, 14 मनवंतर का मैंने बताया आपको, तो मिडवे में है। अगर गुड़ आप उसमें डालो तो भाई डरने की बात नहीं है कि कोरोना आ गया और प्रकृति सृष्टि बिल्कुल विनाश की ओर चली गई, या कहीं अटैक हो गए तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ, जी सब विलय हो जाएगा। नहीं, प्रलय आएगा, अपने समय पर आएगा, जिसकी काल गणना इतनी सूक्ष्म रूप में साइंटिस्ट कर चुके हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद सृष्टि पुनः से, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये जो प्रकृति तत्व बना है, इनमें धीरे धीरे ये फोर्स कम होने लगेंगे, वो वाइब्रेशंस कम होने लगेंगी, ये खंडित होंगे, और प्रलय के समय ये अपनी अवस्थाओं में, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश तत्व, आकाश तत्व से फिर से ये मनस तत्व, अहंकार, महत तत्व, और प्रकृति रूप में आ जाएगा और विलय आ जाएगा। अब कैन यू रिलेट कि वो जो 5 तत्व हमें बताए गए थे कि सब मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, विलय हो जाएगा, है ना? कितना ब्यूटीफुल दिस इज, एंटायर क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल। सो अभी हमें 6 मनवंतर और रहने, लगभग मोटे मोटे आप मानिए कि 2 अरब वर्ष और जीने हैं। सो लिव दिस फुली। और इसमें हम तो वैसे भी बहुत चरम सीमा पे हैं, जो मनुष्य कहते हैं ना हायरार्की में बहुत उच्च स्थान पर हैं, तो हमें तो और दायित्व है कि इसे समझें, समझाएं
और को एग्जिस्ट करें अपनी प्रकृति के साथ। उसी मनस तत्व से वो प्लांट्स बने हैं, प्यार कीजिए उन्हें तो वो दे विल गिव मोर। आई मीन आप देखते होंगे जैविक खेती और पीपल बाहर के जो लोग हैं वो उस पर इतना अनुसंधान कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं अपना, क्योंकि वे जानते हैं कि ये अंत रूप यही है। वी आर देयर टू को एग्जिस्ट, द सोशल कोफिशिएंट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाट इट इज। वो भी उसी मनस तत्व से है, आपको उसको रिलेट करना है अपने उपभोग के लिए ही, मगर को एग्जिस्ट करके साथ में सिम्बियोटिकली हमें रहना होगा। ऐसा ही ये मनुष्य के साथ है, ऐसा ही मनुष्य का पशुओं के साथ है। दिस इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सोशल एंड आपका जो तीसरा क्वेश्चन था जिसको हम इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं। अगर आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ दिस क्रिएशन इज नॉट देयर, आप नहीं कर सकते को एग्जिस्ट। आप नहीं समझ सकते कि किस तरह ये पदार्थों को हमें इस्तेमाल करना है, किस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हमें वायुयान बनाने हैं अपनी जीवन को सरल बनाने के लिए, नॉलेज का ट्रांसफर करने के लिए इधर से इधर। हम नहीं समझ सकते किस तरह से हमें स्पेस साइंस में जाना है जब तक हम इन तत्वों को नहीं समझेंगे। जब तक आप ये ग्रेविटेशनल फील्ड, बचपन में हमें फिजिक्स कितनी बोरिंग लगती है, मगर ये वाकई समझने योग्य है और वैदिक दृष्टि से समझेंगे तो ये इतनी आसान, इतनी सरल है, जीवन में उतार पाएंगे। So this was the entire setup behind the creation of this, which makes you a little more wise. I must say, upgrade yourself so that you translate it to your surroundings and you raise all the three coefficients together. So I would request all the teachers present here, because you are in this fraternity, that you have a responsibility to share this to your classmates, classrooms. वो बच्चे देखिए इतनी युवा अवस्था में है, वो मेरे जैसे प्रश्न लिए हुए घूम रहे हैं। उन्हें पढ़ा दिया जाता है कि बिग बैंग से आ गया। बिग बैंग इज नॉट द आंसर। उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि एक स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है, साइंटिस्ट ने स्ट्रिंग थ्योरी की उत्पत्ति की है। आपको पता है वो स्ट्रिंग क्या है? वो यही वाइब्रेशंस हैं। इन्होंने मॉलिक्यूल्स तक जाना, एटम्स तक जाना, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तक जान गए। इसके नीचे क्वार्क्स तक भी पहुंच गए हैं। दे हैव रीच्ड टू द क्वार्क्स। क्वार्क्स के नीचे स्ट्रिंग थ्योरी वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं इसके नीचे पार्टिकल फॉर्म नहीं रहती है, कुछ वाइब्रेटिंग एंटिटीज हैं जिसे उसको कहते हैं स्ट्रिंग्स। Isn't it? थोड़ा सा मतलब मुझे तो जो स्ट्रिंग्स, दे आर वाइब्रेटिंग एंटिटीज। दैट्स नथिंग, दैट्स द प्रकृति रूप जो महत्त्व, मनस तत्व जो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशंस है, वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं है। एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ये जान पा रहे हैं कि समथिंग इज देयर फॉर द वाइब्रेशंस। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई वाइब्रेशंस को भी मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम क्या है? वो मीडियम मनस तत्व है, आकाश तत्व है। जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं क्वार्क्स के नीचे, जो स्ट्रिंग्स हैं, वो कहाँ स्ट्रिंग्स जो है वो कंपन कहाँ कर रही हैं? वो आकाश तत्व में, स्पेस में वाइब्रेट कर रही हैं। इसके नीचे की 5 कड़ियां वैदिक साइंटिस्ट जानते हैं, वैदिक फिजिशियंस जानते हैं। आप सुनिए, हम पर इतना बड़ा दायित्व है इन्हें सुनने का, जानने का, बताने का विश्व को कि भाई वो मीडियम के बाद, आकाश तत्व के बाद मनस तत्व आता है, मनस तत्व के बाद अहंकार आता है, फिर महत तत्व आता है, फिर प्रकृति आती है। दैट इज द नेचुरल स्टेट। 4 स्टेज, 5 स्टेज हम बियॉन्ड जाकर बता रहे हैं। और इन स्टेजेस को जानने के लिए अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप ये मत मानिए कि ये नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज ऐसा मत सोचिए कि जो आप नहीं जान पाते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर हैव बीन पीपल, रिसर्चर्स, years and years gone into it. आप फिर मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न, कि फिर अलका जी ये जो ऋषि मुनि होते थे, ये कैसे, जब इनके पास कोई उपकरण नहीं हुआ करते थे, ये कैसे इन वाइब्रेशंस को कैच करते थे? जो वाइब्रेशन हमारा मोबाइल ले पाता है, आज की टेक्नोलॉजी ले पाती है, तो ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है, ये उस समय पे किस तरह से होती थी? हल्का सा मैं इसको देखिए, इसलिए मैंने, प्रियंका ने अभी स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला होगा, स्पिरिचुअलाइज योर साइंसेस। साइंस इज टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। तब ऋषि मुनि उस ध्यान अवस्था में बैठते थे, उनकी इतनी पवित्र आत्मा होती थी, वो रिसीवर्स बन जाते थे, वो एंटेनाज उनके अंदर होते थे, जो एंटेना आप अभी घर के बाहर लगाते हो, वो इतने कंट्रोल्ड फॉर्म में अपने आप में वो समाधि अवस्था में बैठते थे
और इन वाइब्रेशंस को चारों तरफ से कैच करते थे, उन्हें अपने अंदर ग्रहण करते थे उन इंफॉर्मेशंस को, और फिर समझते थे, ज्ञान की उत्पत्ति होती थी, और फिर वो उसे लिखित फॉर्म में या श्रुति अवस्था में फिर लोगों को बताया करते थे। अब आपको ये भी थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में, समाधि अवस्था, ध्यान, मेडिटेशन, मैम ये तो थोड़ा ऐसा लगता है साइंस से बियॉन्ड है या अलग है। Then I'll give you 2 keywords. Please research, please Google. Russia is doing a extensive research on hypnopedia. Hypnopedia है ब्रेन की रिसीविंग जो पावर होती है, ये हमारा एंटेना है, यू नो दिस ब्रेन, एंटायर ब्रेन इज आवर रिसीविंग एंटेना। यही अभी हमें ब्रेन को डेवलप करना नहीं आता, हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो उन्हें एंटेना बनाने पड़ रहे हैं। अगर आप वैदिक की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो आपके एंटेनास खुद इतने एनफोर्स्ड होंगे, यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द मटीरियल वाली साइंस या मटीरियल वाली टेक्नोलॉजी, उनके अपने एंटेनास होते थे। हिप्नोपीडिया इज ऑल अबाउट attaining that stage. Hypnopedia is all about getting that frequency in the brain which is surrounded in the entire environment. उन frequencies को नहीं, बैट को अलग frequency कैच कर रहा है, मनुष्य अलग कर रहा है, जो जितना कुंठित है वो उतनी कम कर रहा है, जो जितना लिबरल, जितना खुले दिमाग का, हर चीज को ग्रहण करने का जिसे मन है, साइंस, नॉलेज, खुशी, संपन्नता, उत्साह, जो हमने जैसे पुरानी क्लास में भी, पिछली क्लास में भी हमने सुना, एम्पैथी, ये जो जितना खुले हुए विचारों का है, जितना साइंस के प्रति, उसको नॉलेज के प्रति जितनी श्रद्धा है, उसके एंटेनास उतने शार्प हैं। सो शार्पन योर एंटेनास, रेज योर इंटेलिजेंस लेवल, क्वेश्चन को रेज कीजिए, पूछिए ये सवाल, कैसे बनते हैं, क्या तत्व हैं, क्यों बड़े लोग कहते थे 5 तत्वों से होता है, 5 में विलीन हो जाता है, क्या है ये तत्व, पढ़िए, जानिए, पूछिए लोगों से, सुनिए सेमिनार्स, बताइए। We talk on so many gossips and all. नहीं मन करता ये समय हम उन चीजों में लगाएं कि यार ये उत्पत्ति का कारण है, मैं इससे बनी हुई हूं, मैं इसलिए एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे अपने आसपास इस तरह से जीना है। Isn't it so vibrating? नहीं, living life to the fullest, ये उसका बेस है इंटेलिजेंस। इसलिए मैंने इंटेलिजेंस क्वेश्चन को ही बेस बनाकर आज का व्याख्यान आपके लिए तैयार किया था, बिकॉज इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य, ये सेमिनार्स पशु नहीं करते, मनुष्य करते हैं, क्योंकि वो मननशील हैं, वो आनंद को और ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। सो दिस वाज द एवरीथिंग आई कुड शेयर। आई हैव गेन्ड अ लिटिल इन माय previous stages of knowing Vedic people, reading Vedic physics, और इसमें आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी का मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी। उनकी YouTube वो थी सीरीज, being busy with the family life and a demanding office, how to do all this। तो मैं क्या करती थी, इनके ड्राइव करते हुए YouTube पे सुन लिया, उसके छोटे छोटे क्लिप्स आए हुए हैं वो सुन लिए, फिर आनंदित होती थी, और इनके क्लिप्स और ज्यादा फिर रिलेट होते गए। मैं कहा हाँ यार, ये थोड़े से रिलेट कर रहे हैं और ये थोड़ा सा कन्विंसिंग है, नॉट लाइक बिग बैंग, नॉट लाइक कि वो कछुए से मनुष्य बन गया। फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, अच्छा सन स्टार्स अब तक रहने, चिंता करने की कोई अवस्था नहीं है, हमारी काफी प्रकृति आगे चलने वाली है, ओके मुझे इनके साथ इस तरह से रिलेशन में रहना है। ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं पश्यंती रश्मियों से। ऐसा नहीं आप देखते हो किसी को मैसेज मिल जाता है, वो होता क्या है, वो पश्यंती रश्मियां हैं, बिना बोले, बिना स्पर्श के। क्या हुआ, वो पश्यंती रश्मियां हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, जो आइस से गई वो शर्मा जाता है, या वो मुस्कुरा जाता है, या वो समझ जाता है कि सामने वाला गुस्से में। डोंट यू फाइंड कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, इन्हें जाना जाए, इन्हें समझा जाए। देयर इज बियॉन्ड मैकेले की पढ़ाई, देयर इज बियॉन्ड मैक्स मूलर ने जो हमें पढ़ा दिया, आधा ज्ञान आधा को तोड़ मरोड़ दिया, आधा को हमें ग्लानि दे दी कि भाई तुम तो मूर्ख थे, तुम तो बिल्कुल, तुम्हें कुछ आता ही नहीं था, और स्त्रियों को तो तुम पढ़ाते ही नहीं थे। और गार्गी जी का, जिन्होंने मैंने नाम दिया, इतनी बड़ी विद्वता लिए वे स्त्री हुई। तो पार्वती जी जो शिव जी की धर्मपत्नी थी, वेदों की प्रकांड विद्वान, मतलब आप तब कहते हैं कि भाई भारत अभी 300-400 साल में ये हुआ, तो मुझे तो हास्यास्पद लगता है, अब तो गुस्सा भी नहीं आता। पहले मुझे थोड़ी नाराजगी होती थी, अब तो मुझे हंसी आने लगती है, क्योंकि वे नहीं जानते, दे आर नॉट एक्सपोज टू इट। जो नहीं जानते उसे नहीं मानते, ऐसा है। सो हम भी ऐसे ही हैं, जो नहीं जानते उसे नहीं मानेंगे, तो जानिए, एंड दैट्स ऑल अबाउट, जानिए ही हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। रेज योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। उससे पहले मुझे याद आया
मैंने आपको 2 चीजें बताई थी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही हैं कि ऋषि मुनि किस अवस्था में वो जो एंटेनास रिसीव कर पाते थे. सो पीपल इंटरेस्टेड कैन आल्सो राइट. देयर इज एन अल्फा स्टेट which Russia is again, Russia, China and Philippines, जो एशिया के countries हैं, they are doing extensive research on this. Alpha state है EEG, सांसों की रिदम को कंट्रोल कर कर उस अवस्था में पहुंचना जहां पर आप उन चीजों को जान पाते हैं जिसको हम मेडिटेशन भी कह रहे हैं. योग मेडिटेशन, ये मेडिटेशन क्या है? ये आपकी कार्य क्षमताओं को क्यों बढ़ा देता है? ये इसलिए करता है कि आप इतने विचारों, जो विचार में बहुत सारे विचार आते हैं, इनको थोड़ी देर के लिए दूर रखता है. ब्रेन अपनी अवस्था में, पूर्ण अवस्था में पहुंचता है और तब ये एंटेना आसपास की वाइब्रेशंस को कैच कर पाता है. एंड दीज वाइब्रेशंस आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर दीज वाइब्रेशंस अराउंड अस. ये दोनों चीजें बताने के बाद आप इस पे पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. और वे कर रहे हैं, बाहर के देश कर रहे हैं, आइए हम भी करें. We raise our bars, intelligence questioned, and so our emotional and social questioned. इसको बताने के बाद, आपसे शेयर करने के बाद, इतने उत्साह में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. ओम शांति. Thank you so much, ma'am, for your wonderful session. Now we will take the interactive session. So participants, if you are having any questions, any queries, please unmute yourself and ask. Ma'am, no questions, but just to make compliment, I did not hear to any such lecture with such deep knowledge till date. Right, I'm a professor in Sriram College of Commerce, University of Delhi, and knowledge ma'am shared with us today was commendable, and I appreciate her efforts which she was trying to make with people, and ultimately it was a nice session. I would clap for her and standing ovation, ma'am. Thank you so much. Any other participants, if you are eager to ask something or you want to share your experience regarding this Veda knowledge, so you are welcome. Or if you have any queries or any questions, please ask by unmuting yourself. Ma'am, your session was so wonderful. As Saurabh sir said, really commendable. And I hope that no one is having any doubt from the participants. It's really very nice. Now I request Surbhi ma'am to please conclude the session. Yes, ma'am. Thank you, Priyanka ma'am. And thank you, Alka ma'am. जितनी भी बार आपको सुनते हैं, हर बार एक नई चीज सीखने को मिलती है. और आई थिंक ये हमारा 4th-5th सेशन था जिसमें हमें मौका मिला आपको सुनने का. इट्स आवर प्रिविलेज. And ma'am, the session was really very wonderful, and we came to know about the things which we don't know. मतलब ये topics अधिकतर conversation में नहीं आते हैं, but this topic is really very informative, and you beautifully correlate all the things. You tell us about the 5 tattvas and the root of creation which you discussed. That was excellent, ma'am. And जितने भी chat box में मैं participants के feedback देख रही हूँ, that was excellent. And आज आपने सोचने पे मजबूर सबको कर दिया है कि हमें यहाँ पे भी इस और भी अपने जो अपना एंशियंट इंडिया है उसको देखना है. और जो भी क्रिएशंस है वो जो हमने सुने हैं, बट वो कितने पुराने समय से ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हम इसको एक अलग डायरेक्शन से देखते हैं. तो दैट वाज रियली आपका जो एंगल ऑफ डायरेक्शन जो आपने शो किया, दैट वाज वंडरफुल मैम. एक्सीलेंट सेशन. एंड आई होप पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ अपने व्यूज भी शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम. इफ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस, आई थिंक मिस्टर तरंग सर वाज वेरी एक्टिव थ्रू आउट द सेशन. He was also writing in the chat box about the knowledge. I think वो बहुत अच्छे से correlate कर पा रहे थे. So if any of the participants, please, if you want to share your views also, please welcome. As the topic was very, it's very informative, ma'am. So on the behalf of Sage Group, ma'am, thank you once again, and hope to hear you again and again, ma'am.
Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. And I have shared your mail ID with our participants, as in the chat box they are asking about your mail ID. So I have shared your mail ID with our participants. And thank you so much for sharing such a wonderful and valuable knowledge with us, and for sparing a beautiful time with us. Really a great pleasure to listen you again and again. प्रियंका, प्लेजर वाज ऑल माइन, बिकॉज जैसा मैंने बताया, गति होती है ये उत्साह बांट के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हो सकता है किसी की ज्ञान पिपासा जो रही होगी मेरी जैसी, अगर वो थोड़ी बहुत भी मैं शांत कर पाती हूँ, शुदा दे पाती हूँ, इससे बड़ा परोपकार मैं कर नहीं सकती थी. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल चांस एंड प्लेटफॉर्म की भाई हम इन टॉपिक्स पे बात करें. एटलीस्ट आज का यूथ नीड्स टू गियर अप. इसी वजह से हम इतनी भौतिक दास्ता में हैं, और इसलिए हमें कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, हम सुन लेते हैं, किताबें हम उनकी पढ़ रहे हैं और साइंस सारा यहाँ का था गया, और अब हमें बिल्कुल, तो ये हल्का सा है. सो वो अपनी जो बौद्धिक दास्ता है उससे प्लीज उभरिए, आत्मविश्वास जगाइए, स्वदेश देश प्रेम, अपने ऊपर गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति पर. हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, आप पढ़िए इन्हें, जो भी आपको स्ट्रीम अच्छी लगती है, आप कुछ भी उठाइए, थोड़ा सा वैदिक लीजिए, थोड़ा सा इसको वेदों की तरफ ले जाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है. कॉस्मेटिक्स, अगर लेडीज को सुंदरता का शौक है कोई बात नहीं, आप इस तरफ ले जाइए. आपको कार्स का शौक है, गो टू ऑटोमेशन, गो फॉर इट. अभी जैसे जस्ट टू शेयर विद यू ऑल, धीरे धीरे सारा विश्व इस तरफ आ रहा है कि उन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो था, लास्ट पार्टिकल जिसे विश्व समझ नहीं पा रहा था, उसका नाम दे दिया इन्होंने गॉड्स ओन पार्टिकल. सो द लिसनर्स कैन राइट इट डाउन. Just Google God's own particle. So what is this God's own particle? So that's the particle which doesn't come into किसी फॉर्म में ऐसे प्रकट नहीं हो पा रहा. वो समझ नहीं पा रहे, तो उन्होंने कह दिया यार ये भारत वाले भगवान भगवान बहुत करते रहते हैं, इन्हीं के भगवान के नाम पे डाल दो. So they name it as God's own particle. Yes, it is through the Almighty. Yes, इस प्रकृति तत्व को वही स्पंदित कर रहे हैं, और वो पार्टिकल जो वाइब्रेशंस है वो बनाई भी उनके द्वारा ही गई हैं. That's why. So just link all these. आप वेस्टर्न को भी देखिए, जहां वे अटक जाते हैं उनकी बहुत अच्छी चीजें हैं, जहां वे अटक जाते हैं आप थोड़ा अपना भी नॉलेज रखिए, और फिर इन दोनों से आपको क्या करना है, लेकर आनंदित होना है. दैट इज द प्राइम मोटो. सरल जीवन, सादा जीवन, कहते ना उत्थान वाला जीवन जिए. ऐसे दास्ता में और कृप करते हुए टेंशंस में ऐसे नहीं जीना. इसका बेस ज्ञान है. ज्ञान के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इस जंजाल से निकाल सकता है. एनीथिंग दैट कैन टेक यू आउट इज ज्ञान. इसलिए बुद्धि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बड़ा स्तर माना गया है वो ज्ञान, बुद्धि, बुद्धिमान. हमारे यहाँ गुरुओं की ये जो परंपरा रही है ये ऐसे ही नहीं रही है. जो भी ज्ञान का स्रोत है, जो हमें इतने गूढ़ रहस्यों को बताते हैं, दैट्स व्हाई, बिकॉज इट मेक्स योर लाइफ सिंपलर, इजियर, ब्यूटिफुल, वर्थ लिविंग. Thank you so much, ma'am. Or the next in our future tenure, future projects also, we would like to have you with us. So on the behalf of entire Sage Group and SIRT Pharmacy, I show my gratitude to you for accepting our invitation and for delivering such a valuable knowledge, valuable presentation with our participants. Thank you. Thank you, Priyanka. I forgot to mention the names of our delegates. I would like to also thank Engineer Sanjeev Ji, CMD of the Sage Group. I would also like to thank Dr. Prashant Jain, Vice Chairman, Sage University, Srimati Karan Agrawal, the Chairperson, Kumari Shivani Agrawal Ji, she is the Executive Director of Sage Group, and also to Dr. R.B. Goswami, who's the Director of CERT, the pharmacy group that you have in Sage. So I would like to thank all of them for giving me this wonderful opportunity, and to your team. Dhanyavad.